لیکن کوئی بھائی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی نہیں سنتا۔ ہم کہاں جائیں بتائیں؟ کہ غریبوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، غریبوں کا کوئی وارث نہیں ہے، کہ ہمارا قصور یہ ہے، ہمیں اللہ نے غریب پیدا کیا۔ تو ہم ان کے شوکت خانہ لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لے سکتے، کرونے کی وجہ سے ہم کسی کو نہیں لے رہے۔ انہوں نے اس وقت لیا نہیں، پھر ہم اتنے مجبور تھے کہ ان کی زندگی تو ہم نے بچانی تھی، پھر ہم نے ان کا کہیں اور سے ٹریٹمنٹ کرایا۔ تو پھر جب ان کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے شوکت خانم کے اتنے چکر لگائے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے کہیں اور سے کورس لگوا لیا، اب ہم نے نہیں لینا۔ آپ یہ بتائیں، یہ کینسر کا علاج کے لیے اسپتال بنا ہے، جب ہم غریبوں کو نہیں لیں گے تو پھر یہ کس کو لیں گے؟ گجرانوالہ میں بھی ہمارا مکان کرائے کا، ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، ہم نے تو جمع پونجی کر کے چھوٹا سا ایک پلاٹ بنایا تھا، وہ بھی بیچ کے ہم نے ان کے علاج پہ لگا دیا۔ تو ہم تو یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں لاہور، وہاں بھی ہمارا کرائے کا گھر ہے، ہمارا تو گھر بھی نہیں ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ آپ لوگ مدد کریں گے تو شاید اللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، پیسفل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جوہر ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جو شادی کھوئی دھنا سنگھ اس کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے۔ یہ فیملی گجرانوالہ سے لاہور آئی ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ نام ہے زاہد شاہ جی۔ زاہد شاہ صاحب، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی میں گجرانوالہ سے ہم آئے ہیں جی، اور علاج کے تو میں وہاں پہ گجرانوالہ میں نوکری کرتا تھا پرائیویٹ، پمپ لائن میں، منشی پونہ، اور وہاں سے پتہ لگا کہ مجھے بخار ہوا ہے، پھر میرے کمر میں درد ہوا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کرایا شوکت خانم سے، آغا خان سے، انہوں نے کہا کہ ان کو بلڈ کینسر ہے، اور گجرانوالہ میں پھر وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے اس چیزوں کا۔ وہاں سے ہمیں کسی نے کہا کہ آپ لاہور جائیں، پھر لاہور آئے ہیں پہلے ہم شوکت خانم میں۔ وہاں سے انہوں نے کہا جی ہم بڑی عمر کے بندے نہیں لیتے، چھوٹے عمر کے لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کرونا وائرس ہے اس لیے ہم نہیں لے رہے۔ وہ پھر بیمار، یعنی کہ چلا نہیں، بالکل ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھیں بالکل، تو پھر یہ جناح ہسپتال لاہور میں ایڈمٹ کرایا مجھے۔ تو یہاں سے میری اب انہوں نے پھر کہا ہے کہ کیمو تھراپی ہوگی آپ کی۔ اب کیمو تھراپی کے بھی مجھے کوئی 9 کورس لگ چکے ہیں، جو چھوٹے موٹے جو میرے پاس تھے اپنے ذاتی طور پہ کچھ پیسے، وہ 2-3 کورسوں میں لگ گئے۔ اس کے بعد بس پھر اللہ چلا رہا ہے، اور لوگ تھوڑی بہت کر دیتے ہیں، اس سے گھر کا بھی سرکٹ، گھر میں کمانے والا بھی نہیں ہے کوئی، اور بھی بچے چھوٹے ہیں، وہ بچے میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، میں چرپائی پہ ہوں، اور بس بچے جو بیچارے وہ، اور میری گھر والی وہ ایک ٹائم ایک ڈیوٹی دیتا ہے، دوسرے ٹائم دوسری ڈیوٹی دیتا ہے، رات کو گھر والی ہوتی ہے، دن میں بچہ ہوتا ہے ساتھ میرے وہاں ہاسپٹل میں۔ ایک بندہ ضروری ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ساتھ ہو۔ اب وہ 9 کے بعد ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہے پروسیجر اس کا، اب کہتے ہیں کہ وہ سر کی طرف جا رہا ہے کینسر سارا تمہارا، تو اس کے لیے بھی بون ٹرانسلیٹ جو ان سے ہے نا جی وہ کروائیں، اس کا علاج وہی ہے، نہیں تو جب تک آپ کی جان میں جان ہے کیمو تھراپی کرواتے رہیں گے تو آپ ٹھیک ہیں، بقایا پھر آپ جا کے یہ دونوں علاج یا اسلام آباد میں ہوتا ہے پھر کراچی میں ہوتا ہے اس کا علاج۔ یہ جو کیمیو تھراپی انہوں نے بتائی ہے، یہ پراپر علاج ہے یا صرف یہ گزارے کے لیے بولا انہوں نے؟ یہ وہ تو پہلے کہتے تھے کہ یہ پراپر اس کا علاج ہوگا، ہم اتنے اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ابھی میں نے جو 9 کیمو تھراپی مجھے لگ چکی ہیں، یعنی کہ تو اتنا اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہوا ہوں، کچھ بہتری نظر آئی ہے، لیکن اس کا جو مستقل وہ کہتے ہیں اس کے جو ان سے علاج ہے وہی ہے بون ٹرانسلیٹ، جو مجھے بولنا تو آتا نہیں، اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں میں، تو وہ کراچی میں ہوتا ہے، یہ اسلام آباد میں۔ یہ کینسر کون سا ہے آپ کو؟ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ بلڈ کینسر ہے، تو انہوں نے بولا کہ آپ کا جو بلڈ کینسر ہے وہ سر کو جا رہا ہے اب؟ یعنی کہ ہاں جی، وہ یعنی کہ اس کی طرف جا رہا ہے، MIR کروائی ہے تو اس کے جو ذرات ہیں نا وہ سر کی طرف، دماغ کی طرف، اس کے خلیوں میں جا رہے ہیں وہ۔ تو یہ جو پراپر علاج آپ بتا رہے ہیں اس کا کتنا خرچہ ہے؟
इसका प्रॉपर इलाज का फिर मैंने अपने घर से भेजा था कराची। वो फिर वो फ़ाइल हमने बनवाई थी वहाँ की भी अपने। तो वो कहते हैं कि 40 से पहले हम अब इसको 15 लाख का खर्चा है, इसको हम अपना कीमोथेरेपी लगाएँगे, हो सकता है उसमें ठीक हो जाए। तो अगर नहीं तो फिर वो 30 से 40 लाख 40 लाख का तकरीबन बताते हैं कि खर्चा है इसका, कि बोन ट्रांसप्लांट का इसका। भई ये भई अगर हम करें तो वो हम कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास रिपोर्ट सब हैं, मैंने आप कहते हो सेंड कर देंगे आपको, जिसको भी चाहिए उसको प्रॉपर सेंड कर देंगे अभी की। फ़िलहाल टेस्ट जो चेक करना चाहे मुझे, जिन्ना अस्पताल में एडमिट हूँ मैं, कैंसर वार्ड में। और सारे ये वहाँ कराची की भी हमने जो फ़ाइल बनाई है उसकी भी, बीएनआईबी की भी, तो वो रिपोर्ट्स हमारे पास सारी मौजूद हैं। जी नाज़रीन, अभी ज़हार शाह की वाइफ़ मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके इलाज के लिए इनको कितनी ज़रूरत है। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि ये एक गरीब फैमिली है, गुजरांवाला से लाहौर आई है और जो कुछ इनके पास था, जितना ये कर सकते थे, वो कर चुके हैं। जैसे ज़ाहिर साहब ने आपको बताया कि 9 केमियोथेरेपी जो है ना, वो करा चुके हैं और इतने में इनका जो भी इनके पास जमा पूँजी थी या जितने भी पैसे वगैरह थे या जितना भी अरेंज कर सकते थे, वो लगा चुके हैं। तो अभी इनको इलाज के लिए असल में पैसों की ज़रूरत है। तो कोई मुखय्यर हज़रात जो इनकी हेल्प कर सकता हो या इनका इलाज करवा सकता हो, तो इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। आप इनसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं और इनका जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर कोई पैसे देना चाहे तो पैसे दे दे या कोई इलाज करवाना चाहे तो इनसे राब्ता करके डायरेक्ट इनका इलाज भी करवा सकता है। तो इनकी वाइफ़ से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये इनका मसला क्या है, रिपोर्ट्स क्या है इनकी और कितना टोटल इनको खर्चा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा कि अभी जो रिपोर्ट्स बता रहे थे वो करवाई हैं आपने कराची से भी, तो उन्होंने क्या बताया कितना टोटल खर्चा आपको चाहिए इनके इलाज के लिए? वो कहते हैं एनआईबीडी हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है। वो कहते हैं पहले आप हमारे पास लाएँ बंदे को, हम दाखिल करेंगे। फिर उसके बाद हम 15 लाख रुपए तकरीबन कीमोथेरेपी का खर्चा बताया उन्होंने, 15 लाख तक है। और फिर उसके बाद अगर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा, तो उसका खर्चा 40 से 45 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है। इतना खर्चा उन्होंने अमाउंट बताया है। सिस्टर मुझे ये बताइएगा कि अभी हस्बैंड आपके बता रहे थे कि हमने शौकत खान में भी ट्राई किया था जो कि कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? जब इनको ये बीमार हुए थे शुरू में, तो इतने बीमार थे कि ये अपना हाथ भी नहीं हिला सकते थे, अपना पैर भी नहीं हिला सकते थे। तो हम इनको शौकत खान में लेके गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते, कोरोना की वजह से हम किसी को नहीं ले रहे। उन्होंने इस वक़्त लिया नहीं, फिर हम इतने मजबूर थे कि इनकी ज़िंदगी तो हमने बचानी थी, फिर हमने इनका कहीं और से ट्रीटमेंट कराया। तो फिर जब इनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई, तो मैंने शौकत खानम के इतने चक्कर लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आपने कहीं और से कोर्स लगवा लिया, अब हमने नहीं लेना। आप ये बताएँ, ये कैंसर का इलाज के लिए अस्पताल बना है, जब हम गरीबों को नहीं लेंगे तो फिर ये किसको लेंगे? और इमरान खान साहब, आपसे तो मेरी ख़ास तौर पे अपील है, मैंने अपनी और वीडियो में भी अपील की है कि अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर का इलाज कराएँ। आप तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम आप मेरे शौहर का इलाज करवा सकते हैं। आप मेरे शौहर का इलाज करवाएँ, मेरी आपसे ख़ास तौर पे यही अपील है। और ये देखें, इतनी ये वीडियो है कि ये इमरान खान साहब आपके कोई वो नहीं देखते कारिंदे, उन लोगों तक आपकी खबर नहीं जाती कि भई इनका इलाज कराएँ। हम कितने परेशान हैं, मैंने कहाँ-कहाँ के धक्के नहीं खाए इनके इलाज के लिए, लेकिन कोई भाई हमारी मदद नहीं करता, कोई नहीं सुनता। हम कहाँ जाएँ बताएँ? क्या गरीबों का कोई सहारा नहीं है, गरीबों का कोई वारिस नहीं है। कि हमारा कसूर ये है, हमें अल्लाह ने गरीब पैदा किया है। ये सारी इनकी रिपोर्ट से जिस दिन पता लगा है कि इनको कैंसर है, ये सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं। अगर कोई देखना चाहे तो हम रिपोर्टें उनको साइन भी कर सकते हैं। ये सारे जो अभी फ़िलहाल इनका जो इलाज है वो जिन्ना हॉस्पिटल से चल रहा है। जी, अभी फ़िलहाल इनका जिन्ना हॉस्पिटल से चल रहा है, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं है ना इनका। तो वो ये कहते हैं इसका जो इलाज है मुस्तकिल वो है इनका बोन मैरो वाला। उससे ये सही हो जाएँगे बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये कहाँ पे, कराची में होगा या इस्लामाबाद से होगा? ये पिंडी होगा या कराची होगा। अब हमारे लिए कराची जाना भी एक मसला है, पिंडी जाना भी एक मसला है। क्योंकि अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी मदद करे, तो हम इनका अच्छे से इलाज करा लें। और अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों से अपील करती हूँ मैं कि इस वक़्त हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस घर में आजकल 10 कमा रहे हैं, उस घर में गुज़ारा नहीं, हमारे घर में तो बीमारी है, मुफ़लिस-सी है हमारे घर में। मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, छोटे बच्चे हैं।
लाहौर मेरे चरपाई पे पड़े हैं। तो हम कहाँ से करें सब कुछ? आप लोग तो दे सकते हैं, जो उन बहन भाइयों से अपील है, हमारी मदद कीजिए। गुजरांवाला में भी हमारा मकान किराए का, हमारा तो घर भी अपना नहीं है। हमने तो जमा पूंजी करके छोटा सा एक प्लाट बनाया था, वो भी बेच के हमने इनके इलाज पे लगा दिया। तो हम तो यहाँ किराए के मकान में रहते हैं लाहौर, वहाँ भी हमारा किराए का घर है, हमारा तो घर भी नहीं है। हम तो बहुत परेशान हैं। आप लोग मदद करेंगे तो शायद अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं, अभी इनका जो मसला है वो भी सुना है। गुजरांवाला में भी इनका अपना मकान नहीं था, वहाँ पे भी किराए पे रहते थे और यहाँ लाहौर में इलाज करवाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़ाहिर है अपना मकान नहीं, किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं। तो इलाज कराने के लिए घर से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इनका जो किराया है इस घर का जहाँ पे हम बैठे हैं, इसका किराया भी कोई और दे रहा है। तो जो घर का खर्चा है वो भी कोई और ही जो है ना वो कर रहा है। जो भी मुखिया हज़रात हम उनका नाम नहीं शो करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सकता है, जितना कोई कर सकता है, इनके लिए लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि एक ये सदका जारिया है। इससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं है और इससे बड़ा इस्लाम के अंदर कोई काम भी नहीं है कि आप किसी की हेल्प करें या किसी का इलाज करवाएँ जो ऐसा करे। ये हमारी बहन है, मुझसे इनके आंसू नहीं देखे जा रहे, ये बात करते हुए जज़्बाती हो गई हैं। तो मज़ीद मैं इनसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि बस थोड़ा-सा मामला इस तरह का है। तो आपसे रिक्वेस्ट फिर दोबारा से यही है कि नंबर इनका चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो जो भी इनसे राब्ता करना चाहिए, जो भी कर सकता है, जितना भी कर सकता है, अगर कोई इलाज करवा सकता है, कोई साहिब हैसियत है, कोई प्रॉपर इलाज करा सकता है इनका, तो वो करवा दे, या जितना भी कोई दे सकता है इनको इनके हस्बैंड के इलाज के लिए, तो वो इनको लाज़मी। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, बहुत ही शर्मिंदगी और बड़े अफ़सोस की बात है कि इन्होंने एक की थी, बासत अली हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे। उन्होंने इनकी वीडियो की थी, इसी हवाले से ही की थी। तो नंबर ज़ाहिर है उन्होंने दिया था वीडियो के ऊपर कि कोई हेल्प करना चाहे तो उनसे कर सकता है। तो इन्होंने बताया कि जी कुछ लोग कॉल्स करते हैं और बड़ी बेहुदा बातें करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ये एक परेशान बहन है हमारी, ठीक है? हमारी माँओं की उम्र की है, तो थोड़ी-सी शर्म करें, कोई हया करें आप, कि आपसे एक मदद की अपील की जा रही है और आप कैसी बेहुदा हरकत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी। मैं क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? क्या कॉल ले आती है थोड़ा-सा बताइएगा ज़रा? यही ज़्यादातर लोग होते कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि देखें, किसी को उम्मीद दिलाना भी बुरी बात है। पहले वो उम्मीद दिलाते हैं हमने आपकी मदद करनी है, फिर अगली कॉल पे कहते हैं कि दोस्ती करें, फिर कभी कुछ कभी, ये तो तरीका नहीं है ना, हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं कि किसी से गैर अखलाक की बात की जाए। आप ये देखें, उन्हें शर्म नहीं आती कि मैं उनकी माँ की उम्र की, मुझसे इस तरीके की बात करते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम इतने परेशान हैं, हमें और तो परेशान ना करें। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमसे ऐसी बातें भी ना करें। नाज़रीन, मैं क्या कहूँ यहाँ पे कि बस मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो इनका नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इनकी सिर्फ़ हेल्प कर दें। और खुदारा, खुदारा, खुदारा आपकी मेहरबानी है, अल्लाह का खौफ़ करें और ऐसे बेहुदा कॉल ना करें, ऐसी बेहुदा हरकत ना करें, ठीक है? जिससे इनका दिल दुखे, वो पहले परेशान है अपने हस्बैंड को लेके, अपनी फ़ैमिली को लेके। नाज़रीन, जैसे इन्होंने बताया कि शौकत खाना में इन्होंने ट्राई की है, वहाँ पे गए तो उन्होंने पहले ये कर ला कि कोरोना है चल रहा है, तो कोरोना की वजह से हम पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कैंसर का पेशेंट है, ज़ाहिर है अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था, कहीं न कहीं से तो कोई मेडिसिन लेनी थी, कहीं न कहीं से कोई इलाज करवाना था इन्होंने। तो अब इन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल में चेक करवाया, वहाँ से इन्होंने जो भी इनका ट्रीटमेंट था वो शुरू करवाया, जो आर्ज़ी तौर पे था। तो जब ये वापस गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि आपने कहीं और से जो है ना वो शुरू करवा दिया इलाज, अब हम इनको जो है ना वो एडमिट नहीं कर सकते। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले आपने बोला जी हम कोरोना की वजह से ले नहीं सकते, तो अगर इन्होंने कहीं और से करवा लिया है, तो आप इनको दोबारा एडमिट नहीं कर सकते। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं और से मेडिसिन ले ली है, तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी मेडिसिन वगैरह ना लें, जब तक हम एडमिट नहीं कर सकते, अपने पेशेंट को घर पे रखें। अगर वो बच गया तो उसकी किस्मत है, अगर ना बचा तो वो उसको मरने के लिए छोड़ दें, कहीं से और से मेडिसिन ना लें। शर्म करें। मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि आपको ज़रा सी शर्म नहीं है, हया नहीं है आपके अंदर, कि जो अस्पताल है, ये जो शौकत खानम अस्पताल बनाया आपने, ये कहाँ किस लिए बनाया गया है? ये इन्हीं गरीबों के लिए बनाया गया था कि या कि हमारे जो जो पाकिस्तानी हैं, जो बहन-भाई जो इलाज नहीं करवा सकते अपना, जो प्रॉपर्ली नहीं पे कर सकते, तो उनका जो बाहर जा नहीं जा सकते, उनको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकें, उनका इलाज यहाँ पे कर सकें।
تو یہاں پہ بھی اگر یہی حال ہوگا تو میں کیا کہوں کہ اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب سے میری بہن نے بھی اپیل کی، میں بھی اپیل کروں گا کہ خدا را ان کی ہیلپ کریں۔ بہت پریشان ہیں یہ، اور بہت ہی خستہ حالت میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے، یہاں لاہور میں بیٹھی ہیں علاج کروانے کے لیے۔ تو ان کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ گھر کا خرچہ چلا سکیں، علاج کروانا تو بہت دور کی بات ہے۔